اللہ کرے کہ کوئی دشمن بھی ہمارا ہونا اس کے بھی بچے اپنے والدین سے نہ بچھڑے، کیونکہ ہاں جی، تو کسی کا کوئی بھی ہے دنیا میں، اللہ پاک سب کے بچوں کو اپنی زمان میں رکھے اور اپنے والدین کے ساتھ ان کے سائے میں کہہ رہا ہوں کہ جادو کرنے والے پہ بھی لعنت، جادو کا جو تعویذ دیتا ہے جو اس طرح کا، اس پہ بھی میں 1000 بار لعنت بھیجتا ہوں۔ 20 سال ہو چکے ہیں وہ گم ہے، گھر سے سبزی لینے کے لیے نکلی، آج تک نہیں ملی، تو دل تو ڈرے ہوئے ہیں پیسے آئے نا بس نکل جائیں، مجھے جب سکون آئے گا جب میں اپنے بیٹے کو دیکھ لوں گی۔ جی انشاءاللہ بھی آپ پریشان قسمت میں رونا لکھا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کرتے ہیں اللہ پاک جتنی دنیا میں جتنے مسلمان رہتے ہیں، دیش پردیش جہاں پر بھی ہیں، سب کو کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور سب کے بچوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، کسی کے بچے والدین سے نہ بچھڑیں، یہ ہماری دل سے دعا ہے۔ اور ہماری طرف سے بھی سب بہن بھائیوں کو سلام ہو گیا، اللہ پاک خیر کرے۔ آپ سب نے دعا بھی ویسے کر رہے ہیں تو آپ بھی کرنی ہے۔ آپ کے بھائی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ جو ہے نا بہت زیادہ تکلیف میں تھا، صبح جب اس کی آنکھ کی نماز ادا کی اس کے جو نا معدے میں درد ہو گیا تھا، وہ نہیں آ سکا، تو میں اور ساسو ماں اور کنور باجی ہم تینوں ادھر آئے ہیں کیونکہ پریشانی چل رہی ہے۔ ویسے تو سب ادھر آئے ہوئے ہیں، باہر بیٹھے ہیں چھاؤں میں کیونکہ وہ کیمرے کے سامنے نہیں آتے، تو ابھی بھی ہم بھائی اور بھابھی کو سمجھا رہے تھے، یہ بہت زیادہ ٹینشن لے کے بیٹھے ہیں، اور سلمان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے کل سے، وہ بھی بیچارہ تکلیف میں ہے۔ اور آپ سب بہن بھائیوں سے گزارش ہے دعا ضرور کرنی ہے، اللہ پاک بھائی اور بھابھی کی پریشانی دور کرے۔ کیا کر سکتے ہیں، بس یہی پریشانی کا عالم ایسا ہے اب کہ جیسا آپ سب بہن بھائیوں نے دیکھا، کل ہم یہاں سے بڑے خوشی نکلے تھے، اس امید میں نکلے تھے کہ ہمیں ہمارا بیٹا مل گیا ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے آئیں گے، لیکن جب وہاں پر پہنچے لیکن جب دیکھا کہ بچہ ہی اور تھا، اس ٹائم سے پھر وہی اس کی بھی حالت یہی ہے، کیونکہ جب یہاں سے جا رہے تھے تو اس کی کیفیت یہ تھی، میں نے محسوس کیا کہ ایسے پتہ چل رہا تھا کہ یہ آج بیمار نہیں ہے، یہ آج ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے دل میں ایک آس تھی کہ میں اپنے بیٹے کو ہی لینے جا رہی ہوں۔ میں بہت خوش ہو گئی تھی کہ میرا بچہ آج مل گیا، میں بس اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے آؤں گی، اسی لیے تو بھابھی کو ساتھ لے کے گئے تھے، پورا یقین تھا، لیکن قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ ہم تو خوش ہو کے نکلے تھے کہ ہمارا بچہ مل گیا ہے، بالکل اسی امید میں تھے کہ ہمارا ہی بیٹا ہے ان کے پاس، لیکن وہ کچھ اور تھا، بچہ ہمارا نہیں تھا۔ لیکن اس پریشانی سے کل سے رات سے پھر اس نے کچھ نہیں کھایا، اسے منتیں کر رہے ہیں، یہ کہتی ہے میرا بیٹا لا کے دو، میرا بیٹا لا کے دو، تو اس کو ایک ہی اس نے رٹ لگائی ہوئی ہے کہ وہ میرا بیٹا وہی لے گئے ہیں جنہوں نے کہا تھا ہم بدلہ لیں گے۔ اللہ کرے وہیں ہو، صحیح سلامت ہو، اللہ پاک اسے اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہمارا تو جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو اسی دعاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب سوچ رہے ہیں کہ اصل میں وہ تھوڑا سفر دور ہے، یہاں سے 300 کلومیٹر سے زیادہ سفر ہے، ضلع چنیوٹ تحصیل لالیاں، وہاں پر وہ رہتے ہیں، ہم ضلع مظفر گڑھ میں رہتے ہیں کوٹ ادو، تو یہاں سے کافی فاصلہ ہے، وہاں پہنچنے میں کافی خرچہ ہے۔ تو میرے حالات ایسے ہیں کہ ہم تو ویسے بس تازی پکائی اور کھائی ہو، یہی سسٹم چل رہا ہے، تو یہ بات ہم کسی صورت کہنا نہیں چاہ رہے تھے، تو میں نے کہا بس بیڈ بھیج دیں، بیڈ پڑا ہوا اور تو کچھ نہیں ہمارے پاس۔ اس کو میں نے کہا ابھی کیا کیا جائے، تو بیڈ ہمارا تھا ایک، وہ کھول کے ہم نے رکھا ہوا ہے، کیونکہ بیٹے سلمان کو جب شادی اس کی ہوئی تو اس کا سامان اس کمرے میں آ گیا، تو وہ ہم نے اپنی ہمشیرہ کے گھر کھول کے رکھا ہوا ہے کمرے میں، تو ہم نے کہا وہ بھیج دیتے ہیں، تو بچے سے تو بیڈ یا سامان تو پھر بھی بن جائے گا، کافی وقت ہے، اللہ پاک خیر کرے، تو بچے کی زندگی سلامت ہو، سامان کی کیا اوقات ہے، سامان تو پھر بھی ہو جائے گا، ہاں تو سامان کی ضرورت نہیں ہے، ہاں جی، میرا بیٹا مل گیا، مجھے کسی
तो इंशाल्लाह हमने इधर उधर सबको कह दिया है। इधर हमारे बाहर हमारे बुजुर्ग भी आए हुए हैं, कुछ मोहल्ले की इधर हमसाई औरतें भी आई हुई हैं। अभी उनसे भी भाभी आप जो है ना, जो हमसाए आए हुए हैं ना, उनसे भी आप बात करें, किसी से पूछ लें। अगर कोई भी लेता है तो हम फौरन उसे हम सेल करके ना हम निकल जाएंगे इंशाल्लाह। और अल्लाह करेगा हमारा बच्चा वहाँ से मिल जाए, क्योंकि इसे बिल्कुल पक्का यकीन है, मैंने वजीफा और किया है, मुझे और ये कहती है मैंने वजीफा किया है, वजीफे में मुझे यही लगता है कि मेरा बच्चा उधर है। और दूसरा ये कि हमारी एक सिस्टर हैदराबाद, जो सिंध हैदराबाद है, वहाँ से और उन्होंने रब्ता किया हमारे साथ। उन्होंने कहा कि हमने भाई आपके बच्चे के लिए पढ़ाई की थी, हमारे वजीफे में हमें यही मालूम हो रहा है कि आपका बच्चा जो इसके पहले ससुरालिए थे उन्हीं के पास है। वो जिस तरह भी बरगला के ले गए हैं, क्योंकि उनके इधर रिश्तेदार रहते हैं हमारे इलाके के बिल्कुल, जो नहरें हैं, नहरों के साथ ही एक खूह है मोती वाला, वहाँ पर वो रहते हैं। उनका ये रास्ता यही पड़ता है जिस रास्ते से ये मछली पकड़ने नहर पे गया हुआ था। तो ये जहन में सोच भी आती है कि हो सकता है कोई ऐसा इत्तेफाक बना हो, वो इधर आए हो। ये हो सकता है क्योंकि आपके जो ना पुराना कुछ झगड़ा ताल्लुक चल रहा है वहाँ से। पुराना झगड़ा तो है, क्योंकि जब वो हम पहले वीडियो में जिक्र कर चुके हैं, बार बार भी कहते, फिर बहन भाई अच्छा नहीं समझते हो, कहते हैं कि बार बार एक ही बात बता रहे हो। वो हम पहले वीडियो में हमने जिक्र किया है कि वो पुराना झगड़ा यही है था ना, कि जो इसकी जिससे शादी हुई थी, जब वो उसकी डेथ हुई, एक बच्चा था वो हमारे पास आ गया था, तो उसकी कुछ अरसे बाद डेथ हो गई। एक एक्सीडेंट में ट्रैक्टर ट्रॉली में वो फंस गया था, वो ऊपर से वो अड़ गया था गन्ने की ट्रॉली के साथ। तो वो ट्रैक्टर ड्राइवर था, वो मैंने जिक्र किया है। तो वहाँ उसकी उस हादसे में डेथ हो गई। तो उसकी अम्मी और जो उसके भाई थे उन्होंने कहा कि आप लोगों ने हमारे बच्चे को जादू करवा के मरवाया है, आप लोगों की वजह से मरा है। तो मैं आज भी कहता हूँ, ऑन कैमरा कह रहा हूँ कि जादू करने वाले पे भी लानत, जादू का जो तवीज़ देता है जो इस तरह का, उस पे भी मैं 1000 बार लानत भेजता हूँ। हमारा दिल ऐसा है नहीं, हमने तो कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं किसी के ऊपर ऐसा करने का। बच्चों के लिए कोई नूरानी 2-4 दफ़ा तावीज़ लिए होंगे जो वो डरे ना, तो गले में डालने के लिए, बस इससे ज़्यादा हमने कभी किसी के लिए कोई गलत नहीं सोचा। तो दिल तो डरे हुए हैं, क्योंकि सास मेरी 20 साल हो चुके हैं, वो गुम है, घर से सब्जी लेने के लिए निकली, आज तक नहीं मिली। तो दिल तो डरे हुए हैं कि इस तरह के हमारा घर का अपना पर्सन गुम है जिसका आज तक पता नहीं है 20 साल से। तो दिल तो डरे हुए हैं कि ये ना हो कि हमारे बच्चे के साथ कुछ ऐसा हो, अल्लाह ना करे। तो हम तो ये चाहते हैं कि हम बस आँख खोलें और हमारा बच्चा, हमारा लखते जिगर हमारे सामने खड़ा हो। इंशाल्लाह सामने मिल जाएगा, आप परेशान मत होइए। यकीन है मेरा बच्चा वही है। जी, मेरा बच्चा और कहीं नहीं जा सकता। सलमान की ये हालत हुई है, मेरा बस बच्चा अल्लाह वही पाक है, खैर मुझे करे। दिल से यकीन है मेरा बच्चा वही मिलेगा। तो इंशाल्लाह हम जो ही ये हमारा मसला हल होता है, घंटे में हो जाए, 2 में हो जाए, 4 में हो जाए, शाम तक हो जाए, तो फौरन हम उसी टाइम निकलेंगे इंशाल्लाह अपने बच्चे के लिए। और वहाँ पर जाके खुद हम अचानक जाएंगे और पूरी इंशाल्लाह तसल्ली करेंगे, किसी को पता ना चले इंशाल्लाह। नहीं अभी नहीं, उनको नहीं बताएंगे, हम चुप करके इधर से चले जाएंगे, अचानक ही जाएंगे उनके घर। हाँ जी, तो हम उस सिस्टर का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें ये बताया, जिन्होंने हमारे लिए इस्तिखारा किया। सिंध से हैं वो सिस्टर। अल्लाह पाक आपको, आपके बच्चों को की ज़िंदगी करे, अल्लाह पाक आपको बहुत दे, अल्लाह पाक आपको, हाँ जी, हर गम और दुख से अल्लाह ताला आपको बचाए। और जितने भी लोग यहाँ आए हुए हैं सबका हम शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे घर जो आ रहे हैं अल्लाह पाक उन्हें खुश रखे। और आप लोगों का बाजी कमाल है, भाभी आपका, खाला जी आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे इस गांव में शरीक हैं। सुलेमान के लिए दुआ करनी है, ये बेचारा पड़ा हुआ है, इस बेसुध है, इसकी रात से काफी काल से, जैसे जो ही हमने वापस आके बताया, ये उसी टाइम चारपाई पे बैठ के इसने सर पकड़ा, उसी टाइम से इसके सर में दर्द
और बीपी लो है, बुखार चढ़ा हुआ है, पता नहीं दवाई कुछ नहीं खाया। दवाई भी ली लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस ना कुछ वो खा रहा है ना पी रहा वही है। तो भाई है बेचारा, वही परेशान हो, छोटे भाई के लिए भी क्या और करें। अब इस टाइम तक यकीन करें हम काफ़ी पहले नाश्ता कर लेते हैं। मैं कसम से कह रहा हूँ कि हमने कोई एक निवाला कोई एक चीज़ भी मुंह में डाली हाँ, हो। हम टाइम 10 तो हो गए होंगे ना, हाँ जी, भूख ही नहीं इतने लगती टाइम किसी गुजर को। चुका है लेकिन भाई ने अभी तक, भाई और भाभी किसी ने भी नाश्ता नहीं किया। कोई पता नहीं है क्योंकि रात से हम ज़्यादा परेशान हैं इसकी वजह से, सलमान की वजह से। ये पहले ये इसका सीना जला हुआ है, मैंने वीडियो में दिखाया है। ये इस जो है ना इसके दिल के ऊपर से नहीं कि वो लगा हुआ है, तो जरा से भी कोई ऐसी बात हो तो ये काफी टेंशन ले लेता है। जहन पे ले लेता है और इसका दिल बैठ जाता है और बीपी लो हो जाता है और ये इसकी ऐसे हालत हो जाती है। अल्लाह पाक खैर करे, अल्लाह पाक सबकी परेशानी दूर करे। बस क्या कर सकते हैं। अल्लाह करे, मैं तो ये कहती हूँ आज आज गाड़ी का कोई इंतजाम हो जाए, अपनी बिक जाए तो बस जैसे ही पैसे आए ना बस निकल जाए। मुझे जब सुकून आएगा जब मैं अपने बेटे को देख लूँगी। जी इंशाल्लाह भाभी आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह मिल जाएगा। हमें भी पूरा यकीन हो रहा है कि जब आप बताएं ना कि आपका जब वहाँ पे झगड़ा हो जाए ऐसी बात हुई, मुझे ना हमें भी ऐसे लग रहा है कि वहीं पे होगा। मुझे यकीन है बस, अल्लाह आपको यकीन है, बस चले जाओ। शायद हमारी किस्मत में ये इतना रोने दुख ही लिखे थे। एक बच्चा वो उस हादसे में चला गया, इसके बाजू भी जले हुए हैं। अब ये इतनी बड़ा हमारे साथ, फिर भी हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने जिस जिस जो भी परेशानी है, अल्लाह पाक इस परेशानी से हमें ज़रूर निजात दिलाएगा और जल्द से जल्द हमारा बच्चा मिल जाए। आमीन। बस यही हमारी इल्तिजा है। अभी तो हमारी रोते हुए गुजर रही है, क्या पता नहीं कितनी देर और आगे हमारी किस्मत में रोना लिखा है। अल्लाह पाक खैर करे। बस अभी जो है ना इंशाल्लाह तैयारी वही करते हैं भाभी, अल्लाह खैर रखे। हाँ अल्लाह पाक खैर करे, अल्लाह पाक जो ना आपकी आपका परेशानी बच्चा दूर करे। आमीन सुम्मा बस आमीन। आप सब बहन भाइयों से अल्लाह का गुजारिश भरोसा है, रख, इमरान अल्लाह बेटे पाक के लिए का भी साथ दुआ बड़ा करें। होता है। और आपके भाई की तबीयत ठीक नहीं है, उनके लिए भी दुआ अल्ताफ करें। भाई के लिए भी हम दुआ कर रहे हैं, अल्लाह पाक उसे शिफाए कामिला अता फरमाए उसके लिए। वो क्योंकि अल्ताफ भाई की तबीयत अब सेट हो गई तो हमारे लिए और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। वो यकीन करें इस टाइम अल्लाह के बाद एक अल्ताफ भाई हैं जो मेरे साथ बिल्कुल अटैच जुड़े हुए हैं और मेरे साथ जहाँ भी पता चलता है गाड़ी भगा रहे हैं, पेट्रोल खर्चा हो रहा है, सारा कुछ वो अफोर्ड कर रहे हैं। तो वो कहते हैं नहीं कोई मसला नहीं है, बच्चा मिल जाए इससे और क्या है, अच्छी बात। हाँ जी अल्लाह पाक खैर तो- करे भाई, बस आप जो ना दुआ ही करें। अब हम अब ये सब बात हाँ है। जी इतना दूर सफ़र है, हमने बेड का इसलिए कहा है, सीधी सी बात है कि क्योंकि पहले भी अल्ताफ भाई का काफ़ी खर्चा हो चुका है। हर किसी का सिस्टम पूरा ये नहीं है कि उसके बैंकों में इतने पैसे पड़े हुए हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये खर्चा जो है ना इतना लंबा सफ़र है, चलो उन अल्ताफ भाई के ऊपर बोझ ना पड़े, हम खुद ये उठाएं। तो हमारी यही सोच है। बाकी अल्लाह पाक खैर करे, तो चलते हैं उधर ही इंशाल्लाह। आप सब बहन भाइयों से यही बार बार रिक्वेस्ट है, जो हमारे बहन भाई हमारे लिए दुआएं कर रहे हैं, हम उनका भी दिल से शुक्रिया अदा करते हैं बहुत ज़्यादा। अल्लाह पाक आप लोगों को अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे, आपके बच्चों को अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे। अल्लाह पाक आपको कभी किसी गम दुख से बचाए। तो फिर हम दिल से ये मैं कहता हूँ कि अल्लाह करे कि कोई दुश्मन भी हमारा हो ना, उसके भी बच्चे अपने वालिदैन से ना बिछड़े, क्योंकि हाँ जी। तो अब किसी का कोई भी है दुनिया में, अल्लाह पाक सबके बच्चों को अपनी ज़मान में रखे और अपने वालिदैन के साथ। ये हमारी दुआएं हैं सब के लिए, और इसी दुआ के साथ इंशाअल्लाह भी तैयारी करते हैं। अल्लाह के हुक्म से मैं जल्द से कहीं जाता हूँ, कोई बैठ कर कुछ करता हूँ, तो अल्लाह पाक जो है ना हमें सबको, पैसे आ जाए तो चलें बस निकलें। हाँ जी बस, तो अल्लाह पाक सबको अपनी ज़मान में रखे, यही दुआ है। और चलते हैं। आमीन आमीन। सारे मेरे बिराओ सारे दुआ मांगने। सारे दुआ आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप आए, आपका भी खाला जी खास कर आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। तो अपने बच्चे, अपना बच्चा पुत्र है।
اللہ پاک خیر وہی صدا اپنا بال ہے اللہ پاک سنا اللہ کی دعا مانگتے ہیں ہاں اے اللہ بس ہم جو سوچ کے جا رہے ہیں اللہ کے اے میرے اللہ وہی ہو اور ہمارا بیٹا وہاں مل جائے انشاءاللہ تعالیٰ مل جائے گا آمین ثم آمین